gonna share a short summary of the Ball poem, class 10 English. Right? Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Let's get started. The poet of Ball poem is John Barrymore, right? And he is beautifully describing a boy who has lost his ball. इसमें क्या बता रहे हैं पोएट कि एक जो बच्चा होता है वो कैसे अपनी बॉल खो देता है, उसके ऊपर ये पोएम है. And he gave a lesson that is full of wisdom to the loss of everyone. So everyone must learn to bear the pain associated with loss. और इस पोएम में क्या बताया है कि यहाँ तो खाली बॉल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम वैसे देखें रियल लाइफ में तो हम काफी कुछ खो देते हैं. ठीक है, बहुत सारा लॉस हो जाता है. So the poet assumes a boy who is playing with a ball. पोएट खड़े हुए देख रहे हैं बॉय क्या कर रहा था, बॉल के साथ में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही once the ball bounces out of his control, जैसे ही बॉल उसके कंट्रोल से बाहर जाती है और consequently कहाँ पे जाके गिरती है, पानी के अंदर, consequently falls into the water, the boy became sad. और बॉय कैसा हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है. The poet feels that no other ball will be sufficient to lessen his sadness. और पोएट क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको दूसरी बॉल लाके दे दी जाए तब भी वो उसकी जो सैडनेस होगी वो खत्म नहीं होगी. Here the lost ball stands for the general loss of human beings. ठीक है, यहाँ पे बॉल को किससे वो किया गया है, loss of general loss of human beings. So the losses may be the loss of personal possession or the death of some near or dear ones or due to the separation from the beloved one. कोई भी हमारा अपना बिछुड़ता है, हमसे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो जो दुख हमें होता है वो दुख उस बच्चे को हो रहा है उस बॉल के जाने से. राइट? So as long as there is life, everyone has to bear many types of losses. कुछ हमारी possession, कुछ हमारा ज्वेलरी चोरी हो गया या ज्वेलरी हमारा खो गया, तो ये सब क्या है, ये सब लॉस ही है. So we need to learn the way of bearing those losses. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन losses को bear करना आना चाहिए, right? ना कि हम sad होके बैठ जाएं. ठीक है? So this poem is about losing something which we love. और ये poem किसके बारे में है कि किसी को हम बहुत प्यार करते हैं और उसको हम खो देते हैं. Then learning to grow up. लेकिन ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे stuck हो जाएं, हम रुक जाएं. हमें क्या करना है, हमें उससे सीखना है, हमें उससे आगे बढ़ना है, grow करना है. So it is about a little boy. और यहाँ पे छोटे बच्चे की बात हो रही है who is in young life for the first time. वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है कि उसकी बॉल क्या हो गई है, खो गई. उस लॉस को वो बेयर नहीं कर पा रहा है, वो बहुत सैड है. And he is like after the loss of much beloved possession, which is here his ball. और यहाँ पे जो उसका possession है वो क्या है, बॉल. So maybe for us, तो हमारे लिए the loss of a ball is of minor consequence. हमारे लिए वो बॉल बहुत छोटा सा consequence है. ठीक है, हमारा जो our natural reaction may be that still there are many more balls. So हमारा natural reaction क्या होगा, एक बॉल जाने से क्या होता है, बहुत सारी बॉल्स मिल जाएंगी. So need not to worry. ठीक है, हम ये बोलेंगे कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, but to a little boy. लेकिन यहाँ पे बच्चे की बात करी है, this is something different. तो वो क्या है, वो अलग सोच रहा है. One can get another ball with a very less amount of money. कोई भी बहुत कम अमाउंट में बॉल को वापस बाय कर सकता है. But money is external, right? And immortal here. So as it cannot buy back the love and hence cannot replace the things that we love. उस बच्चे को किससे प्यार था, उसी बॉल से प्यार था. आप उसको दूसरी कितनी भी बॉल्स आके देंगे तो वो उससे खुश नहीं होगा. ठीक है. So basically in this poem people may take balls just as they will take away the innocence and force us to grow up soon. ठीक है, तो हम ये देखते हैं रियल लाइफ में भी हमको बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन उस लॉसेस से हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं. हम उस लॉसेस, उस एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं. ठीक है. So once we lose the innocence, then we cannot get it back. So but despite all these we have to learn to stand. तो हमें क्या करना चाहिए, stand. हमें stand करना है, हमें रुकना नहीं. तो obviously we need to be strong and get on with our life. तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, strong बने रहना है, irrespective of the sadness. भले ही हम अंदर से उदास हैं, लेकिन हमें क्या करने की कोशिश करनी है, हमें बहुत strong बनना है. So this is the only way we will survive. तो यही एक तरीका है जिससे हम survive कर सकते हैं. Therefore we have to learn to accept and let go. तो हमें क्या सीखना चाहिए, क्या लर्न करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चीजों को और लेट गो करना.
So the poet has made the use of imagery while telling how the ball personifies the spirit of the boy's childish innocence. तो बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, वो बहुत इनोसेंट है, तो कैसे बता रहे हैं कि वो सैड हो जाता है बॉल के खोने से. So we may visualize how the spirit of the little boy like a ball is sinking. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कैसे सिंक हो रहा है उस बॉल में टू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. बॉल कहाँ पे जा रही है? टू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. आपको सबको पता है हार्बर का मतलब क्या होता है, राइट? एंड इट ड्रिफ्ट्स फर्दर अवे, और दूर जाती जा रही है. एंड द लिटिल बॉय विल लर्न टू ग्रो अप. और लिटिल बॉय क्या सीख रहा है? Learn to grow up, and that part is linked to the ball grows up as well until is no longer a little boy. ठीक है? So thus the reader may interpret this poem literally and metaphorically both, right? So it's if literally then it is a soulful picture of a little boy. तो अगर हम literally अगर हम देखें तो उसमें क्या बताया गया है? सोलफुल पिक्चर बताया गया है किसका? लिटिल बॉय का, क्योंकि बढ़ रहा है और लर्न कर रहा है कि जो उसको फर्स्ट टाइम उसका पोजेशन गया है तो वो उससे लर्न कर रहा है, उससे सीख रहा है उस एक्सपीरियंस. तो इट इज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव थिंग्स और पीपल. ठीक है, हम अपने अपनों को भी खो देते हैं, ठीक है, अपनी चीजों को भी खो देते हैं, लेकिन हमें उससे क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लेट गो करना चाहिए, राइट? तो अगर हम कंक्लूजन देखें ऑफ द बॉल पोएम, तो दिस पोएम सक्सेसफुली डिस्क्राइब हाउ वी मे फील टू लूज समथिंग दैट वी लव एंड ग्रो अप इवेंचुअली विदाउट इट. और हम कैसे सीखते हैं? हम कुछ खो भी देते हैं हमारे लव्ड वंस को या फिर किसी पोजेशन को, लेकिन इवेंचुअली हम उससे ग्रो भी करते हैं, हम उन चीज़ों से निकलते भी हैं, स्टैंड बाय भी लेते हैं, अपने आप को उन चीज़ों से निकालते हैं, भले ही सैडनेस है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम उन चीज़ों से निकलें, राइट? तो यहाँ पे यही बताया है कि हमें किसी भी लॉस से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लेट गो करना चाहिए, राइट? लेकिन हम उसको पकड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, हमें आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? So this is all over from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon, and do share this video with your friends and colleagues, so उनको भी हेल्प मिल पाए, मोटिवेट them. ठीक है, और I wish you all the best for your term 1 exam, and I humbly request you to please support my channel ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ, मेरे को मोटिवेशन मिले उससे. एंड थैंक यू.